Okay, children, will continue with the chapter 35 magnetic field due to the current. Question for short answers. Hope you have tried these questions at least twice. Chalo start. Let's start now. Question number 1. Okay. An electric current flows in a wire from the north to south. And I say, suppose this is north, this is south. All right. What will be the direction of magnetic field due to this wire at the point east of the wire? ईस्ट में ऐसे जाएगा राइट हैंड रूल से. राइट हैंड रूल, थंब शुड बी दिस साइड, फिंगर शुड बी अलोंग दिस. तो यहाँ पर एरो ऊपर जाएगा अपवर्ड. देन वेस्ट ऑफ द वायर, यहाँ पर दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट. ठीक है, तो डाउनवर्ड एंड सो ऑन. ठीक है, इसको हम जस्ट राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं. ऑलराइट, ऊपर जो है टॉप मोस्ट पॉइंट पे इधर जाएगा. फील्ड विल बी दिस साइड लाइक दिस एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैज बीन derived in terms of these. Express this terms in terms of C. C के टर्म में चेंज करना. C इज इक्वल टू, वी नो C का रिलेशन मैग्नेटिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म्स में ये होता है. म्यू नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में निकाल के यहाँ पुट कर देंगे बायोट-सावर्ट लॉ में. तो ये आंसर आ जाएगा. ओके, you are facing the circular wire carrying an electric current in the clockwise direction. ऐसे तो राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी. फिंगर सीधे रखो, थंब अंदर की तरफ जाएगा. देयरफॉर फील्ड विल बी इनसाइड गोइंग अवे फ्रॉम यू. ठीक है, नेक्स्ट वन इज एन एम्पियर सर्किटल लॉ इज गिवन बाय दिस रिलेशन लाइन इंटीग्रल. ठीक है, the current outside the curve is not included on the right hand side. Does it mean that magnetic field B calculated by using Ampere's law gives the contribution of only the currents crossing the area bounded by curve? No, it can be for the currents outside. Magnetic field जो है ना outside current के लिए भी हो सकता है. Similar to the Gauss's law है ना. Okay, the magnetic field inside the tightly wound long solenoid is given by this. Suggests that field doesn't depend on the total length of the solenoid, and hence if we add more loops at the end of the solenoid, the field shouldn't increase. Explain qualitatively why the extra added loops do not have the considerable effect on the field outside the solenoid. Field inside the solenoid. तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट एन आई है. एन इज द टोटल नंबर टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ. अगर एन डबल किए तो लेंथ भी डबल हो जाएगी एंड वाइस वर्सा. तो फील्ड रिमेन्स एन स्मॉल एन रिमेन्स सेम, देयरफॉर फील्ड इज सेम. ऑलराइट, 6 क्वेश्चन देखेंगे. फील्ड इज सेम इनसाइड है ना. ये स्मॉल एंड डजंट चेंज, फील्ड डजंट चेंज इनसाइड. long straight wire carries current. Is Ampere's law valid for loop that doesn't enclose the wire? That enclose the wire but it doesn't. No, outside wire के लिए not valid, but loop can be, need not to be circular. क्लोज होना चाहिए, लूप होना चाहिए वो. ठीक है, ये देखते हैं. On straight wire carrying an electric current is placed along the axis of uniformly charged ring. Will there be magnetic force on the wire if the ring starts rotating about the wire? If yes, in which direction? No, it is not. Theta 0 रहेगा या 180. In both cases, no force.
two wires carry equal current I, each are placed perpendicular to each other, just avoiding the contact. If one wire is held fixed and another is free to move under the magnetic force, what kind of motion it will be? Rotational इधर इस पे इधर फोर्स लगेगा इस पे, क्योंकि इसकी जो फील्ड है इधर आउटवर्ड है इधर इनवर्ड है, तो उससे फोर्सेस अपोजिट आ रहे हैं, तो वायर विल रोटेट ड्यू टू द टॉर्क. ठीक है, ड्यू टू द टॉर्क. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Two protons beam going in the same direction repel each other, whereas two wires carrying currents in the same direction attract each other. तो प्रोटॉन बीम के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड वायर्स में मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होता है. ठीक है. In order to have the current in the long wire, it should be connected to the battery or some such source. Can we obtain the magnetic field due to the straight long wire by using Ampere law without mentioning this other part of the circuit? Okay, without mentioning the source, we can just find out current. बताना पड़ेगा हमें कौन सी डायरेक्शन में. That's all. 11th. Quite often connecting wires carry the currents in the opposite directions. Directions are twisted together in using the electrical appliances. Explain how it avoids the unwanted magnetic field. Explain how it avoids unwanted magnetic field. तो कैंसलिंग इफेक्ट, रैंडम फील्ड होंगी और कैंसलिंग इफेक्ट आएगा उसमें ट्विस्ट करने से. इट विल बी प्रोवाइडिंग द कैंसलिंग इफेक्ट. ठीक है. ट्विस्ट करने से. ओके. Now ट्विस्ट करने से क्या होगा, दे विल नॉट बी एडेड अप एट सर्टन पॉइंट्स, है ना. तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी जनरेटेड. Two current carrying wires may attract each other in absence of other forces. The wires will move towards each other, increasing the kinetic energy. Does it contradicts the fact that magnetic force cannot do any work and hence cannot increase the kinetic energy? No, it is not contradicting. Magnetic force still remains at 90 degree. No work is done by magnetic force. वर्क इज़ डन एट द कॉस्ट ऑफ, जो सोर्स होता है उसकी एनर्जी की कॉस्ट पर होता है. जैसे बैटरी हो गई, जनरेटर हो गया, जो करंट सप्लाई करता है उसकी एनर्जी लगती है, उसकी एनर्जी जो यूज़ होती है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने में. फोर्स ऑन द वायर्स आर ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स विच आर हिटिंग द एज ऑफ द वायर्स, है ना. इलेक्ट्रॉन्स जो है वायर है ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स उसको हिट करेंगे, है ना, तो उससे फोर्स बनेगा और दैट मूव्स द वायर्स. ठीक है. ऑब्जेक्टिव 1 पर चलते हैं. वर्टिकल वायर्स कैरी द मैग्नेटिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. and an electron beam sent horizontally towards the wire, the wire will deflect, है ना. तो वर्टिकल वायर्स कैरी द करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ये, है ना. इलेक्ट्रॉन्स इधर आया, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे फेंका, वायर ऐसे है, वायर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे फेंकेंगे तो करंट ऐसे बनेगा, तो करंट इधर आएगा। तो L क्रॉस B से राइट हैंड थंब रूल से फोर्स ऊपर जाएगा। L इधर आएगा, लेंथ वेक्टर, इधर से इधर टर्न करेंगे तो थंब विल बी कमिंग अप। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, ठीक है। द स्ट्रेट वायर, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आएगी, करंट भी इसमें इधर ही है, थीटा विल बी 0 और 180, तो नो फोर्स विल एक्ट, विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द सर्कुलर लूप। और इसके सर्कुलर लूप के ऊपर भी नहीं आएगा, देखो इसके ऊपर भी 0 है, इसके ऊपर देखो इसकी जो फील्ड होगी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, करंट भी लूप में ऐसे रहेगा, या तो 180 पर रहेगा या 0 पर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। थीटा इज़ 0 और थीटा इज़ 180 डिग्री, दोनों केसेस में फोर्स 0 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट होता है साइन थीटा आता है उसमें, साइन 0 एंड साइन 180 इज 0 इन बोथ द केसेस, ठीक है। नाउ प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे आ रही, एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे। दोनों में करंट ऐसे ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो करंट इधर बनेगा, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में आ रहा है। Neglecting the Earth's magnetic field, the electron beam will be deflected towards the proton. एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी रहेगा, तो इन एनी केस irrespective of any speed both will be attracted towards each other. Circular loop is kept in the vertical plane which contains a north-south direction. It carries a current that is towards the north at the top, यहाँ पर ऐसे, और ये इधर होगा। Let A be the point on the axis at the east, यहाँ पर A point है, and B is the point here, the magnetic field due to the loop. ऐसे राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, दोनों राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएंगी, तो दोनों पॉइंट्स पर towards the west at both the points, ठीक है। We'll see the next question. Consider situation shown in the figure. ये स्ट्रेट वायर ये तो फिक्स्ड है, but loop can move under the magnetic force. Loop will remain stationary, no. Will move toward the wire, yes. इस पे देखो फोर्स कंप्लीट, करंट कंप्लीट कर लें डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर अपोजिट रिपल्सिव फोर्स, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिपल्सिव फोर्स विल बी वीक, ये वीक होगा ये स्ट्रांग होगा, नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस, तो बी है मूव टुवर्ड्स द वायर, ये रॉन्ग है, रोटेट नहीं करेगा, टॉर्क 0 रहेगा इसमें, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसमें भी लाइन ऑफ एक्शन जो है आइदर आउटवर्ड होंगे, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगी, या इनवर्ड होंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बट लाइन ऑफ एक्शन सभी फोर्सेस की अलॉन्ग एक साथ है, तो टॉर्क विल नॉट बी डेवलप्ड, तो आंसर इज नो टॉर्क। 6 में देखेंगे, चार्ज पार्टिकल मूव्स अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी 0 बिकॉज आइदर थीटा इज 0 और एफ इज 0। फोर्स का फार्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो दोनों केसेस में फोर्स 0 आएगा, थीटा 0 पर या फिर इधर भी प्रोजेक्ट के 180 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्यों करंट बनाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, एक्सीलेट होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव वेव्स भी इलेक्ट्रोमोटिव वेव भी प्रोड्यूस करता है, तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव वेव का ऑप्शन नहीं दिया है, दो सी द करेक्ट ऑप्शन बोथ ऑफ देम। Particle is projected in the plane perpendicular to the uniform magnetic field area bounded by the path। देखो
एरिया में आर में देखो, आर का फार्मूला एक तो ये होता है आर स्क्वायर, तो काइनेटिक अंडर रूट हट जाएगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेयर इज, इसमें स्क्वायर होगा तो ये वी स्क्वायर, जबकि यहाँ पे वी ऑप्शन दिया, ये रॉन्ग। अगर ये वाला मोमेंटम वाला स्क्वायर किया तो पी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया। बट काइनेटिक एनर्जी रूट के अंदर है, तो स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, है ना। रेडियस के सारे फार्मूले चेक किए हमने, वेलोसिटी के लिए भी, मोमेंटम के लिए भी, काइनेटिक एनर्जी के साथ मैच हो रहा है। 9th में two particles x and y having the equal charges after being accelerated through the same potential difference enter the region of uniform magnetic field and describe the circular path of radius r1 r2, the ratio of the mass x to that of y। तो रेडियस का फार्मूला लगाया हमने, क्या होता है, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m के को q इंटू वी लिखेंगे, और नीचे रूट के बाहर q इंटू बी होता है, रूट के अंदर जाएगा q स्क्वायर बी स्क्वायर। तभी ये सब वैल्यू पुट कर दी, है ना, ये सब कैंसिल हो गए, चार्ज वेलोसिटी क्यू वी, है ना, चार्ज भी सेम है, बी भी सेम, तो m1 बाई m2 बचा है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 बाई r2, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। Parallel wires carry the 20 ampere and 40 ampere in opposite directions. Another wire carry the current anti-parallel to 20, opposite to 20 ampere. At midway, the magnetic force on it will be, देखो इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इन दोनों के बीच में तो लेफ्ट वाले इसके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा इधर ही, है ना, तो नेट फोर्स विल बी टुवर्ड्स 40 एम्पियर। ठीक है, two parallel wires carry the currents I1 I2, I1 greater than I2. When the currents are in the same direction, the magnetic field is 10 microtesla, and when I2 is reversed, the field becomes 30, the ratio of I1 by I2। जब करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मिड पॉइंट पर फील्ड जो है अपोजिट आती है, एक में क्रॉस आएगी, एक में डॉट आएगी, तो उनका वेक्टर सम b1 माइनस b2, बट b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बाकी पैरामीटर सेम है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी I1 माइनस I2, और जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फिर से रिपीट करूँ, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो फील्ड अपोजिट होती है, और करंट जो है फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वेशन I1 माइनस I2 के टर्म में 10 बनेगी, और जब दूसरी वायर में करंट रिवर्स कर दिया तो फील्ड दोनों मिड पॉइंट पर दोनों में फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो I1 प्लस I2 विल बी 30, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे इसको। 12th में कंसिडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कैरिंग करंट I, let there be n free electrons per unit volume, an observer place himself on the trolley moving in the direction opposite to the current with this speed and separated from the wire at distance r, magnetic field seen as the observer is। तो ये जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा इसका, तो मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2, the magnetic field at the origin due to the current element is this, placed in the position r। यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है dl, ठीक है, ये
तो ये ओरिजिन का काम करेगा और ये उसका ओरिजिन विल बी द पोजीशन वेक्टर, तो एरो ऐसे आएगा, ठीक है। वैसे तो पोजीशन वेक्टर इसका आर दिया है, बट फील्ड अपोजिट में आएगी, फील्ड के लिए ये अपोजिट हो जाएगा, तो इसलिए दोनों फार्मूले भी अपोजिट हो जाएंगे। देखो सी, तो आइडियल क्रॉस आर आता है, साइड चेंज हो जाएंगी बिकॉज थिंग्स आर अपोजिट नाउ, सेगमेंट यहाँ पे एलिमेंट, फील्ड यहाँ पे निकालनी है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर विल बी माइनस आर, बिकॉज इसका आर दिया है, तो ये विल बी माइनस आर, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो साइड चेंज हो जाएंगी। एंड डी वाला ऑप्शन भी, अगर मैं डी एल को पहले लाए तो बाहर माइनस रखना पड़ेगा, तो सी एंड डी विल बी द ऑप्शंस। कंसिडर 3 क्वांटिटीज ये दी हुई है तुम्हें, x इज इक्वल टू ई बाई बी, तो ई बाई बी रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, तो x का वेलोसिटी का डायमेंशन होगा, ये भी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, ये फार्मूला होता है c के बराबर होता है ये। एंड थर्ड वन इज L अपॉन सी आर, L इज द लेंथ, सी आर इज द टाइम कॉन्स्टेंट, तो लेंथ बाई टाइम, ये भी वेलोसिटी की डायमेंशंस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये सब टर्म्स दिए हैं, सी कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस, ऑल अदर सिंबल्स हैव देयर स्टैंडर्ड मीनिंग्स। तो एक्स वाई हैज़ द सेम डायमेंशन, ठीक है, वेलोसिटी की डायमेंशन, वाई जेड का भी वेलोसिटी का डायमेंशन, एक्स जेड का भी वेलोसिटी का डायमेंशन, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे एल है, देखो इट इज़ नॉट 1। द लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज द करंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस, ठीक है। ओके, इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ओके, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, तो करंट इधर आ रहा है, ठीक है। तो लूप जो है एक्स वाई प्लेन में, वन कैन फाइंड 2 पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं होगी, 2 पॉइंट पे डायरेक्शंस अलग अलग हो जाएंगी, यानी सपोज यहाँ पे कुछ है तो ये इधर कुछ और हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर द सेम, हाँ ये हो सकता है सेम। देखो सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, एक यहाँ पे लिया, इस पे बड़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन कैन बी सेम, बी डैश डायरेक्शंस कैन बी सेम, तो ये सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल, दूसरा पॉइंट यहाँ ले लो, एक यहाँ लिया तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आ सकती है, मैग्नीट्यूड जितनी ये है उतनी ये हो जाएगी। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेट, ओके ये सही हो गया। द फील्ड्स एट वन पॉइंट इज अपोजिट टू द अदर पॉइंट, ठीक है, ये यहाँ पे जो फील्ड है ये अपोजिट हो गई, फील्ड एट वन पॉइंट इज अपोजिट टू दैट एट द अदर पॉइंट्स, दिस इज पॉसिबल, ठीक है। तो ए इज़ रॉन्ग, बाकी सब सही है, तो ये डायग्राम हटा दो, ओके। थर्ड वन, नेक्स्ट वन, फोर्थ, long straight wire of the radius r carries the current distributed uniformly over its cross section. The magnetic field of magnitude of magnetic field is एक्सिस पे तो ज़ीरो होता है, बिकॉज ये फार्मूला होता है, एक्सिस पे आर जीरो हो जाएगा, फील्ड जीरो हो जाएगी। मिनिमम एट एक्सिस सही है, ज़ीरो, इट इज़ ज़ीरो। मैक्सिमम एट सरफेस, सरफेस पर आर मैक्सिमम हो जाता है, ए के बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगी सरफेस पर, उसके बाद घटनी शुरू हो जाती है, फिर इन्वर्सली इन्वर्स टू द आर हो जाता है। मिनिमम एट द सरफेस, तो ये दो सही है, मिनिमम इज रॉन्ग, बी एंड सी इज ओके। ऐसे ग्राफ आते हैं, ये मैक्सिमम हो गई ज़ीरो और ये मैक्सिमम, सर यहाँ पर सरफेस हो जाएगी, ये आर विल बी इक्वल टू रेडियस, ठीक है। ऑलराइट, हॉलो
ट्यूब इज कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट अलॉन्ग लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट सरफेस, द मैग्नेटिक फील्ड, हॉलो के अंदर क्या होता है, जीरो होती है फील्ड, जिसको हम जीरो होती है, जिसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, बी एंड सी. In coaxial state cable, the central conductor and the outer conductor carry equal currents in opposite direction. इसमें इधर जा रहा है, इसमें सर्कमफ्रेंस पे नीचे आ रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो आउटसाइड, आउटसाइड में कोई पॉइंट लेंगे तो नेट करंट आई इनक्लोज्ड विल बी ज़ीरो हो जाएगा, तो फील्ड बाहर जीरो होगी, ए ऑप्शन. इनसाइड द इनर कंडक्टर नहीं, इसके अंदर फील्ड रहेगी. अगर ये थिक है तो अंदर फील्ड रहती है ये वाले फार्मूले से. इनसाइड द आउटर कंडक्टर, आउटर कंडक्टर के अंदर भी फील्ड रह सकती है, इसकी फील्ड उसकी खुद की फील्ड भी रह सकती है. इन बिटवीन यहाँ पर इसकी फील्ड रहेगी, इस वाले की रहेगी, इसकी ज़ीरो रहेगी आउटर वाले की. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टडी इलेक्ट्रिक करंट इज flowing through the cylindrical conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. नो इट इज़ रॉन्ग. इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह रहेगी अंदर, तभी तो करंट फ्लो होता है. ये एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सब जगह रहेगी, तो दिस इज़ रॉन्ग. द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो. यस, ये सही है. मैग्नेटिक फील्ड में आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो एक्सिस पर आर जीरो हो जाता है, तो इसलिए ये सही है. सी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इन द कंडक्टर. आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि जितने अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो. ये वाली एक्सटर्नल सोर्स होता है, ये हम बैटरी कनेक्ट करते हैं ना ऐसे, उसकी वजह से ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, उसकी वजह से फील्ड अंदर रह सकती. और जितने इलेक्ट्रॉन्स इंटर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो ये न्यूट्रल रहेगा, तो आउटसाइड फील्ड जीरो रहेगी. ठीक है. एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर इज ज़ीरो. नो, मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये होता है, μ0I/2πr, तो फील्ड रहती है. ओके, थैंक यू वेरी मच. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.